بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسی خلیفہ کو نئی نئی مسند خلافت ملی تھی۔ اسے اطلاع دی گئی کہ بعض سرکشوں نے نافرمانی کی ہے۔ وہ ایک طرف تو ان کی سرکوبی میں مصروف ہو گیا اور دوسری طرف دوستوں، بزرگوں اور رشتہ داروں کو تحفے تحائف دینے لگا اور ان پر خصوصی مہربانیوں کے دروازے کھول دیے۔ خلیفہ نے ظالموں کو ختم کرنے اور مظلوموں کی دادرسی کے لیے کمر ہمت باندھ لی تاکہ اپنی حکومت مضبوط کرے۔ خلیفہ نے شیخ فارسی کو بھی تحائف بھیجے تھے جو دارالحکومت سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ شیخ کے کئی مرید اور عقیدت مند تھے۔ اس نے درس و تدریس کے لیے ایک مدرسہ قائم کر رکھا تھا جہاں کئی طالب علم شب و روز علم حاصل کرتے تھے۔ شیخ فارسی اپنے زہد و تقوی میں عام و خاص میں بے حد مقبول تھا اور کسی سے بے وجہ ہدیہ کے قبول نہ کرتا تھا، اس لیے خلیفہ کا ہدیہ بھی قبول نہ کیا اور دل میں کہا معلوم ہوتا ہے خلیفہ کا کوئی مقصد ہوگا، اس لیے ہدیہ لانے والے سے کہا ہمارے کام کی بنیاد ہدیہ لینا نہیں ہے۔ جب خلیفہ کو اطلاع ملی تو کہنے لگا ہاں شیخ فارسی کو حق حاصل ہے، شاید مدرسہ کے اخراجات پورے ہو رہے ہوں گے اور اس کی اپنی گزر بسر بھی ہو رہی ہوگی۔ خلیفہ نے دوسری مرتبہ بھی ہدیہ بھیجا اور کہلا بھیجا ہمارا ایک کام یہ ہے کہ دور ونزد یہ کے رہنے والوں پر احسان کریں، نیز میرا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ شیخ نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں تمہارا مشکور ہوں لیکن مجھے خرچ کے لیے کسی رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ مدرسہ کے اخراجات اوقاف کی آمدن سے پورے ہو رہے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ کوئی جائز مستحق تلاش کریں تاکہ خلیفہ کا انعام اسے دیا جائے یا دیگر ضروری اخراجات پورے کیے جائیں۔ اس مرتبہ خلیفہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ شخص خلیفہ کا ہدیہ کس لیے قبول نہیں کرتا، ممکن ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہو۔ شیخ کو ایک مرتبہ پھر کسی بہانے سے رقم بھیجی گئی لیکن شیخ نے نہایت خوش روی سے ہدیہ اور رقم واپس کر دی اور کہا چونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے یہ اسراف ہوگا اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ خلیفہ ایسا اسراف کرے۔ میں خلیفہ کی مہربانی کا ممنون ہوں لیکن مدرسہ کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں اور مجھے بھی وہاں سے تنخواہ ملتی ہے۔ اگر مجھے تنخواہ نہ ملتی تو گھر بیٹھ جاتا اور بیکار رہتا، پھر مجھے بزرگوں کی امداد کی ضرورت ہوتی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خلیفہ سوچنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا معاملہ ضرور ہے کہ شیخ فارسی ہم سے کنارہ کشی کرنا چاہتا ہے، اگرچہ اس کا ہمارے دشمنوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن خلیفہ بنے پر اس نے مجھے مبارک نہیں دی۔ اگر وہ ہم سے بیزار نہیں ہے تو ہدیہ کس لیے قبول نہیں کرتا۔ دوستوں اور مشیروں نے خلیفہ سے کہا شیخ فارسی صرف درس و تدریس میں مصروف رہتا ہے، وہ نہایت متقی اور پرہیزگار ہے، اسے سے کسی شخص سے لالچ نہیں ہے، اس کا کام صرف درس و تدریس ہے اور اپنی اسی ذمہ داری میں اللہ تعالی کی خوشی تلاش کرتا ہے اور کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا۔ لیکن خلیفہ کہتا تھا جب ہم کسی سے توقع نہیں رکھتے تو شیخ کا حد یہ قبول نہ کرنا خلافت کی توہین ہے۔ یہ درست ہے کہ اس کی ہمارے دشمنوں سے راہ و رسم نہیں ہے، لیکن دوست بن کر رہنا تو عمدہ بات ہے۔ خلیفہ کا ایک غلام نہایت عقل مند، سمجھدار، تربیت یافتہ اور خوش بیان تھا۔ خلیفہ نے اسے حاصل تھی، بے حد مہنگے داموں خریدا تھا، اس لیے اسے خلیفہ کے ہاں بڑی عزت و توقیر حاصل۔ خلیفہ نے غلام کو بلایا اور اسے اشرفیوں کی تھیلی دے کر کہا اے غلام، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے غلامی کی زندگی بڑی سخت ہے اور تمہارے دل میں آزادی اور بزرگوں کی بے اندازہ قدر و قیمت اور حسرت ہے۔ میں نے عہد کیا ہے کہ اگر آج تم ایک اہم کام انجام دو تو تجھے آزاد کر دوں گا اور تجھے سردار اور سرفراز بنا لوں گا۔ غلام نے کہا مجھے امید ہے میں یہ کام انجام دے دوں گا۔ خلیفہ نے کہا فلاں نام کا ایک بزرگ فلاں علاقہ میں رہتا ہے جو ہمارا بدخواہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس سے کوئی خطرہ ہے، اگر وہ ہمارا منون بن جائے تو بہتر ہوگا۔ چونکہ وہ کسی سے ہدیہ قبول نہیں کرتا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی خوش بیانی سے کام لیتے ہوئے شیخ کو ہمارا ہدیہ لینے پر مجبور کرو۔ اس کے علاوہ میں شیخ سے کوئی عہد و پیمان نہیں لینا چاہتا۔ نیز تمہاری آزادی اسی کام میں گروی ہے تاکہ معلوم ہو کہ تم اپنی شعریں بیانی اور حسن کلامی سے کیسے کام لیتے ہو۔ غلام نے تھیلی اٹھائی اور شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر شیخ کے علاقہ کی طرف چل پڑا۔ جب رات ہوئی تو شیخ کے گھر پہنچ گیا۔ غلام نے اپنے ہنر سے کام لیتے ہوئے بات شروع کی اور آیتیں حدیثیں
तारीख और वाक़यात बयान कए और शेख से बहस व तकरार करते हुए कई सवाल व जवाब कए। शेख ने भी बरहान और दलील से उज़्र बहाने गए और खलीफा का शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन हदिया कबूल न किया। गुलाम को जब अपनी कामयाबी की कोई सूरत नजर न आई तो आजिज़ी और इनकिसारी अख्तियार करते हुए कहा, उसे ख्वाजा, सच्चाई से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। हकीकत यह है कि अगर तुम यह हदिया कबूल कर लो तो मुझे आज़ादी मिल सकती है, वरना उसी तरह गुलामी की ज़िंदगी बुसर करता रहूँगा। खलीफा तुम से कोई वादा नहीं लेना चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि उसके दिल में वसवसा है कि तुम ये दिया कबूल कर लो। हाँ, इसमें क्या नुकसान है कि तुम ये हदिया लेकर गरीबों और मुस्किनों में तकसीम कर दो, ताकि खलीफा की शर्त और ख्वाहिश भी पूरी हो और मुझे भी आज़ादी नसीब हो। हालांकि इस माजरा का किसी दूसरे को इल्म नहीं है। शेख ने कहा, आज़ादी का ताल्लुक आज़ादगी में है। इस वाक़या का किसी को इल्म है या नहीं है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हकीकी खुशी ये है कि इंसान खुद अपने आप है राज़ी रहे। मेरा खलीफा से कोई मुतालबा नहीं है और न ही खलीफा मेरा मकरूज़ है। अगर मैंने किसी से बग़ैर दलील हदिया ले लिया तो अपने आप को आपको परहेज़गार न समझूंगा। हालांकि सब लोग मुझे परहेज़गार ही ख्याल करते हैं। अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हदिया ले लूं और तुम्हें आज़ादी भी मिल जाए तो उसका मतलब ये होगा कि अपने गले में खलीफा की ग़ुलामी का तोक़ पहन लूं, ताकि ये मामला मेरे लिए बदबख्ती का सरमाया बन जाए। ऐ जवान, मैं तस्लीम करता हूं कि तू अपनी ग़ुलामी पर राज़ी नहीं है और आज़ादी का तलबगार है। इसी तरह अगर मैं अपनी मर्जी से ग़ुलामी अख्तियार कर लूं तो क्या तुम इस बात पर राज़ी होगे? ग़ुलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं। हाँ, अब मैं जाता हूं और इशरफियाँ भी वापस ले जाता हूं। अब जबकि आप आज़ादगी को इस कदर पसंद करते हैं तो यकीन रखो कि मैं भी अपनी अमदा बातों से खलीफा का दिल नरम कर दूंगा और वो तुम्हारे मुताल्लिक अच्छी राय कायम करेगा। ख्वाजा ने कहा, हाँ, थैली ले जाओ और जो बेहतर समझते हो वही करो। चूंकि खलीफा तुम्हारी आज़ादी की फिक्र में है, उसलिए मैं भी दुआ करता हूँ कि जिस तरह भी हो तुम्हें आज़ाद कर दे। गुलाम ने अशरफियाँ उठा लें और चल पड़ा और रास्ता में सोचने लगा, ये ख्वाजा भी कितना बड़ा बुजुर्ग है कि अपनी आज़ादी और आज़ादगी के अवज़ दूसरों का एहसान नहीं उठाता। लेकिन शेख ने मुझे ये भी कहा है कि थैली उठा लूं और जो निसा काम बेहतर समझूं वही करूं। अब मैं खलीफा को भी तसल्ली दे सकता हूं और शेख फारसी को भी खलीफा की नज़रों में अजीज़ व मोहतरम बना सकता हूं। और इशरफियों की थैली जो कार खैर के लिए मुझे दी गई है ज़ख़ीरा कर लूँगा, इसलिए कि मेरी आज़ादी का दारो मदार उसी थैली पर है। हाँ, मैंने शेख से जो दरस हासिल किया है हमेशा याद रखूँगा, चूँकि खलीफा शेख फारसी से शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि उसकी दोस्ती चाहता है जो उसे हासिल हो जाएगी। नेज़ में भी अपनी आज़ादी चाहता हूँ जो अनकरीब मुझे मिल जाएगी। गुलाम ने सोचा कि मैं थैली छिपा दूंगा और खलीफा से कहूँगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अगर मैंने हकीकत बयान कर दी तो इस बात का इंदेशा है कि खलीफा मीर एज़ुर कबूल ना करे और आज़रदा हो। हकीकत यह है कि बुजुर्गी और बुजुर्गवारी शेख फारसी के शायान शान है। यही वजह है कि उसका मकाम इंसानी मकाम से बालातर है। उसके बावजूद वो अपने आप को खलीफा का दोस्त और खैर ख्वाह समझता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। गुलाम जब वापस पहुंचा तो अर्ज़ किया, ए खलीफा, मेरी ज़बान में जितना हुनर था मैंने उससे काम लिया है, लेकिन शेख ने कहा है कि यह थैली किसी मुस्तहक को दी जाए। चनांचा मैंने भी उससे वादा कर लिया है कि अब खलीफा को तुझसे कोई सरोकार ना होगा और तुझसे कोई फरमाइश न करेगा, यहाँ तक कि तुझसे मिलने किसी पैगाम या बातचीत की ख्वाहिश भी न करेगा। बहरहाल ए खलीफा, मैं अपने मकसद में कामयाब लौटा हूँ और शेख ने भी मेरी आज़ादी की दुआ की है। अब आप मुझे बताएं कि मैंने शेख से जो वादा किया है इसमें कोई बुराई तो नहीं है? खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारी कोई बुराई नहीं देखी और न ही अब कोई बुराई की है, बल्कि तुम्हारे काम से आसुदा खातिर हुआ हूँ। अब तुम भी तसल्ली रखो, इसलिए कि हमारी शर्त के आज़ादी थी। मैं इसी वक्त तुम्हें आज़ाद करता हूँ और फ़िलां इलाका का अमीर मुकर्रर करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस इलाका के लोग तुम्हारे मातहत राज़ी और खुश रहेंगे। गुलाम ने खलीफा को दुआएं दें और खलीफा की तारीफ़ की, लेकिन दिल ही दिल में अपने झूठ से शर्मिंदा था।
कभी कहता खलीफा और शेख ने मेरी दरस्तकारी और एक वली पर एतमाद किया है, लेकिन मैंने दोनों से खयानत की है। फिर कहता उनमें से कोई भी एक दूसरे का बदख्वाह नहीं है और मैंने जो कुछ किया है उसमें मसलहत थी। खलीफा को शेख से कोई तवक्का न थी, लेकिन अब आसुदा खातिर हो गया है। शेख भी बदस्तूर अपने काम में मशगूल है, न तो हदिया कबूल किया और ना ही खलीफा से कोई वादा किया। जब दोनों जानिब कोई शर्मिंदगी और गुलामी नहीं है तो मैं कैसे शर्मिंदा हूं। लेकिन गुलाम के दिल में फिर वसू से आने लगे कि शेख फारसी तो खलीफा की नज़रों में बुजुर्ग था, लेकिन मैंने उसे हकीर बना दिया है, और खुद ही जवाब देने लगा, शेख अपनी नज़र में हकीर नहीं है और उसकी बुजुर्गवारी में किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। गुलाम मुकर्रा इलाका का हाकिम बन गया और जाते वक्त शेख की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मुझे मालूम नहीं आपकी दुआ का असर था या देगर कोई वजह थी कि खलीफा ने मुझे आज़ाद कर दिया है, बल्कि फिलां इलाका का हाकिम भी बना दिया है। बहरहाल मुझे हमेशा याद रहेगा कि आप आज़ादी और आज़ादगी को कितना बुजुर्ग समझते हैं। मुझे उम्मीद है आपका सबक कभी न भूलूंगा। इसी तरह कई साल गुजर गए और आज़ाद शुदा गुलाम इस इलाका से दूसरे इलाका में भेजा गया। इत्तेफाकन एक साल इलाका में बदआमनी पैदा हो गई और हर तरफ लौट मार और कत्ल व गारत का बाजार गर्म हो गया। गुलाम ने अपनी हर मुमकिन सलाहियत से अमन व अमान कायम करने में कोई कसर न छोड़ी और अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। लेकिन बदकिस्मती से शेख फारसी डाकुओं के हाथ गिरफ्तार और कैद हो गया। जब गुलाम को शेख की गिरफ्तारी की इत्तला मिली तो इलाका में अपना नायब मुकर्रर करके उशरफियों की थैली ली और तन तनहा डाकुओं की तलाश में चल पड़ा। डाकुओं के सरदार को इत्तला मिली कि एक शख्स तन तनहा और बगैर दिफा हमारे दुश्मनों की जानिब से आया है और कहता है कि मैं सरदार के नाम एक अहम पैगाम लाया हूं और सिर्फ सरदार से ही मिलना चाहता हूं। सरदार ने कहा, उसे बुलाया जाए। गुलाम ने कहा, जंग और लूट मार अलग काम है, लेकिन दोस्ती और दुश्मनी दूसरा काम है। मुझ पर एक कर्ज का बोझ है जिसे उतारने के लिए बेताब हूं। गुलाम ने शेख और खलीफा की दास्तान तफसील से बयान की और कहा, ये उशरफियों की थैली है जिसकी बदौलत में आज़ाद हुआ हूं, और इस नाम और निशानी का शेख तुम्हारी कैद में है, जो गुलामी से सख्त बेजार है और जितना तुम तसव्वुर करते हो इससे भी ज़्यादा बेआज़ार है। अगर तुम्हें जवान मर्दी और आज़ादगी की समझ है तो इस उशरफियों की थैली के एवज उसे आज़ाद कर दो। अगर तुम उसका मतलब नहीं समझते तो मैं उसकी आज़ादी अपनी कैद के बदले खरीदने के लिए तैयार हूँ, ताकि एक उर्सा की शर्मिंदगी से आसोदा खातिर हो सकूं। डाकुओं का सरदार गुलाम की बातों से मुतासिर हुआ और कहने लगा, तुम्हारी बातों से सदाकत की बू आ रही है। मैं भी किसी गुलाम और शेख से कम नहीं हूं, इसलिए शेख को आज़ाद करता हूं कि ऐसा बुजुर्ग और आज़ाद मंश कैद में न रहे। नेज़ तुझसे भी हमारा कोई वास्ता नहीं है, इसलिए कि तुम जंग की नीयत से नहीं आए हो, बल्कि कर्ज की अदायगी के लिए आए हो। मैं ये थैली कबूल करता हूँ, इसलिए कि शेख और खलीफा को उसकी ज़रूरत नहीं है और मुझे उसकी ज़रूरत है। गुलाम ने अपना कर्ज अदा कर दिया था और शेख फारसी के हमराह लौट आया था। जब गुलाम ने वापस आकर तमाम वाक़या खलीफा से बयान किया तो खलीफा ने उसे दोस्त और दुश्मन के बूर मयान पैगाम रसानी पर मुकर्रर कर दिया। उसने अपने फ़राइज़ ऐसे अहसन तरीके से अंजाम दिए कि उसके हाथों से काफ़ी उर्सा तक सुलह सलामती की राहें खुलती रहीं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल विज़िट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।